Hi, good evening to everyone. This is Arshad Zahir welcoming you again in this geography class. Hope you all are doing good and have started your studies. Yeah. So, in last class, we have discussed about geography basic, where we have learned about the direction, shape, and size of the earth. Moreover, we have discussed the basic terms related to geography like island, continent, ocean, seas, bays, gulf, strait, isthmus. We have discussed all these terms in detail in previous class. Why we have discussed these terms? Because these terms are very basic terms and will be used again and again till we study geography. In today's class, we are going one step forward in geography basics, and we are going to start a new topic, that is latitudes and longitudes. And this topic, latitudes and longitude, is one of the most important topic in geography. Without having a knowledge and understanding of latitudes and longitudes, we cannot understand geography at all, because many phenomena, many things are related to this latitudes and longitudes. So, how these latitudes and longitudes are so important? Let us understand with this an example. Suppose we have two places. One place is A and another place is B. And we have to transport a material from this place A to place B. And you have all the required resources and facilities at place A. For example, you have good quality material at point A, you have good workers who can pack the material very well, and you have good means of transport. But still, you cannot transport any material from this place A to place B until and unless you know the location or address of this place B. What does it mean? It means that if you are not knowing the location of this place B, you cannot deliver the material from place A to place B at all. So, what can we conclude from here? We can conclude to deliver any material from place 1 to place B, you must have an idea about the location of that point. For example, here that point is B. So, if you don't know the position or location of point B, you cannot deliver any material here. So, latitudes and longitudes will tell you the location or address of this place B. So, this is the importance of latitudes and longitudes. We can take another example. For example, this is Earth's surface. Suppose this is Earth's surface and some person A is located here. And अगर अब मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि ये पर्सन जो A है इसकी लोकेशन बताइए, तो आप कहेंगे कि हम लोकेशन कैसे बता सकते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो इस पर्सन A का हम लोकेशन नहीं बता सकते। तो आपने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए कम से कम आपको दो इमेजिनरी लाइंस की जरूरत पड़ती है, एक जो x की होगी और एक y की होगी। सपोज दिस लाइन इज
A dash, and this line is B. So if I ask what is the position of this person A, then you will tell that it is located on A dash B, and A dash B is the point which is located here. If you want to locate any other point, then for that point you also need to have two imaginary lines. One is along x-axis and another is along y-axis. Suppose some person is here. If you want to know the location of this person, you have to draw a horizontal line, that is x-axis, and vertical line, that is y-axis. Suppose this is C and this is B. Then person B is located at C. So this is the importance of latitudes and longitudes. So in today's class, we are going to discuss about the latitudes and longitudes. First, we will discuss about latitudes, then longitudes, and for this another term is latitudinal lines, and another one is longitudinal lines. Now you can say that, hey sir, all these terms are same. No, these are not same. ये सेम नहीं है. अगर सेम होते तो इनको अलग अलग नहीं लिखा जाता. इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है वो आगे चलकर अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम दो लाइंस चाहिए या कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिसकी वजह से आप उसकी लोकेशन बता सकें. फॉर एग्जांपल, अगर हम रफली एक समझना चाहें तो इस तरीके से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और इसका हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, एंड कुछ वर्टिकल लाइंस इस पर बना लेते हैं. और इसका हम नाम दे देते हैं A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यहां पर कोई पर्सन P बैठा हुआ, आप इसकी लोकेशन बताइए, तो सिंपली आप यहां से देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन क्या है, ये है A, और फिर वर्टिकल वाली लाइन क्या है, दैट इज AA डैश. तो AA डैश इज द लोकेशन ऑफ दिस पर्सन P. अब कोई आपसे कहे कोई Q पर्सन जो है वो B E डैश पे बैठा है, तो B पर जाएंगे हम कि B वाली लाइन ये है और E वाली लाइन ये है. इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहां पर कोई हमारा Q पर्सन बैठा हुआ है. तो आपको अगर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पता है तो उसकी वजह से आप लोकेशन निकाल सकते हैं. और फिर अगर किसी भी लोकेशन पे कोई आदमी या कोई पर्सन वहां पर मौजूद है या कोई और चीज भी मौजूद है तो उस पर हम लाइन बना के उनके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को फाइंड कर सकते हैं. तो इसमें से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडिनल लाइंस. और ये जो आपको इसमें वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं यहां पर, ये इस तरीके से ये वर्टिकल लाइंस. तो इन वर्टिकल लाइंस को, जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली, इन सबको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस. अब ये लैटिट्यूडिनल लाइंस कैसे बनी, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस कैसे बनी, कितनी होती है, कहां से आ जाती हैं, तो इन सब का हम डिस्कशन एक एक करके करेंगे. लेट्स कि यहां पर हम मैप में देख सकते हैं कि कोई भी मैप होगा उस पे देखिए आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के यहां पर आपको एक नेटवर्क देखने को मिलेगा. इसके ऊपर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो सब के सब क्या है,
ये लॉन्ग लैटिट्यूडनल लाइंस है, और जितनी भी ये वर्टिकल लाइंस आपको ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिख रही हैं, ये सब के सब हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लेकिन आप एक चीज गौर करें कि यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हैं वो हमारे पास क्या है, डिग्रीज में लिखी हैं, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे तो हम यहाँ पर अल्फाबेट्स में कर रहे थे। तो इसको अल्फाबेट्स में हम क्यों नहीं लिख सकते, उसकी वजह यह है कि कभी अगर हमें पॉइंट्स में जाना पड़ गया तो अल्फाबेट्स में हम पॉइंट्स नहीं बना सकते, इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर नंबर सिस्टम यूज किया है, ताकि अगर हमें पॉइंट्स में भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स निकालने पड़ जाएं तो हम नंबर सिस्टम के जरिए इजीली उनको हम मेजर कर सकते। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा होगा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी यहां पर। तो देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो उस लोकेशन के लिए आपको उसका लैटिट्यूड पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप उस लोकेशन पर एग्जैक्टली पहुंच पाएंगे, और नहीं पता है तो फिर आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए किसी भी लोकेशन की ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको कम से कम वहां के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए, ताकि आप उसके जरिए वहां की ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से समझ सके। हो कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस दीज थिंग्स वन बाय वन एंड इन डिटेल। Let's first take latitudes and इसी से हमारा बनेगा latitudinal lines। latitudinal lines। अब अगर हम latitudes की बात करें तो latitude it is an angle, it is an angle। ये एक एंगल होता है। एंगल्स मीन्स व्हाट? ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये एंगल्स होते हैं। इसमें एक हमारा राइट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट है। ये 90 से कम है तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये 90 डिग्री का है तो इसको राइट एंगल बोला जाता है, और ये हमारा 90 से ज्यादा है तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो एंगल मींस हम डिग्रीज में बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कहीं पे भी एंगल बनाने के लिए कोई एक पॉइंट का होना जरूरी है और रेफरेंस लाइन का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है और फिर मैंने इसी ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 0 डिग्री का एंगल है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 180 डिग्री का। नहीं, 180 डिग्री का नहीं है। क्यों नहीं है वो आप इससे देख के समझ जाएंगे कि अब ये दूसरी वाली एरो ऊपर आती है, यानी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये 10 डिग्री का है। फिर इसी तरीके से एक और एंगल बनाते हैं, ये हम 30 डिग्री का मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हमारा एंगल बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। तो जब ये लाइन इस तरीके से होगी और दूसरी लाइन इधर ऐसे होगी तो ये जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा, यानी इसके एरोस अपोजिट साइड्स होंगे। तो किसी भी एंगल को बनाने के लिए एक पॉइंट का होना जरूरी है। तो हमने कहा लैटिट्यूड सर एंगल है, लैटिट्यूड एक एंगल है, लेकिन एंगल कहां से मेजर किया जाएगा? इसको सेंटर ऑफ द अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से, सेंटर ऑफ अर्थ से। कैसे सेंटर ऑफ अर्थ से? ये हम अर्थ सरफेस यहां पर बनाते हैं, ये हमने ऐसे अर्थ सरफेस बना लिया, हाफ पोर्शन इधर और हाफ पोर्शन हमने इधर। तो अगर हम इसके सेंटर की बात करेंगे तो ये हमारा सेंटर होगा अर्थ। तो इस सेंटर से हम मेजर करेंगे इस एंगल को। अब ये सेंटर से जो एंगल बनाया जाएगा हम उसकी बात करेंगे। अब ये कैसे बनेगा वो हम अभी देखते हैं।
तो लैटिट्यूड एक एंगल है, कहां से मेजर किया जा रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ से। और किस डायरेक्शन में? हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मेजर करेंगे। यहां पर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सेंटर हो गया। अब हमें यहां पर एंगल बनाना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट है, तो पॉइंट से हमें बेस लाइन बना लेनी है। ये हमारी बेस लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हम मान लेते हैं कि ये है हमारा 10 डिग्री। फिर इससे ऊपर चलते हैं तो इसको हम बोल देते हैं 20 डिग्री। अब कोई कहेगा कि सर सिर्फ यही हमारे इवन नंबर्स में क्यों, हम तो 37 डिग्री का बनाना चाहेंगे। आप 37 का बना लीजिए, ये 37 और करते करते हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब कहेंगे सर हम तो साउथ में बनाएंगे, साउथ में भी बन जाएगा इसी तरीके से, और ये हमारे एंगल्स बनते चले जाएंगे। तो हम अर्थ के सेंटर से, अब आप देख रहे हैं यहां से, आपको नहीं लग रहा ये लाइन हमने इस तरीके से एक्सटेंड कर, तो आप देखिए इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम नॉर्थ कह सकते हैं और इस वाले पोर्शन को हम साउथ कह सकते हैं। अब ये एंगल, अब कहेंगे कोई उधर भी एंगल बनाए, तो आप उधर एंगल बना लीजिए, लेकिन वो एंगल ओवरलैप कर जाएंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे अभी हम बता रहे। अब हमने कहा इट इज एन एंगल। लैटिट्यूड क्या है? एक एंगल है सेंटर ऑफ अर्थ से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया। अब इन्हीं लैटिट्यूड से, यानी इन एंगल से जो हमारी लाइंस बनेगी अर्थ सरफेस के, वही हमारी क्या होंगी? वो लैटिट्यूडनल लाइंस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें तो इस 10 डिग्री से हम अगर लाइन बनाएंगे अर्थ सरफेस पे, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री की लाइन, ये 20 डिग्री, फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं ये 37 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ भी साउथ में भी 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, इसी तरीके से 37 डिग्री और ये 90 डिग्री। इन एंगल से, यानी जो हमने एंगल्स बनाए सेंटर ऑफ द अर्थ से, उससे जो अर्थ सरफेस पे लाइन बनाई जाएगी उसी को हम बोलेंगे लैटिट्यूडनल लाइंस बोलेंगे। और ये 0 डिग्री जो है, इसके ऊपर जितना भी होगा उसको हम नॉर्थ वाला मानेंगे और नीचे वाला साउथ। यानी इन लैटिट्यूड्स के साथ आपको नॉर्थ लगाना होगा और इन लैटिट्यूड्स के साथ आपको साउथ लगाना पड़ेगा। ये है हमारे लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल लाइंस। लेकिन अब अगर कोई कहे कि सर मैं यहां पर 91 का बनाना चाहता हूं, आप यहां 91 बनाएंगे तो ये आपने एंगल खींच लिया, यहां पर कहीं ना कहीं 89 होगा। जब 89 से लाइन बनाएंगे तो चूंकि अर्थ सरफेस क्या है? पूरा राउंड है, इसके चारों तरफ वो लाइन उसी एंगल पे घूमेगी, तो जब ये घूमेगी तो ये ओवरलैप कर जाएगी इस एंगल। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 90 तक ही एंगल लेते हैं। और फिर अगर हम यहां पर इधर की तरफ एंगल मान लेते हैं कि आगे की तरफ जाएंगे इधर 150 की तरफ, तो हमारा इधर जो है वो किसी न किसी दूसरे एंगल से क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए लैटिट्यूडनल एंगल्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 90 तक ही जाते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे इस मैप में कि यहां पर 40 डिग्री ये नॉर्थ लैटिट्यूड, बिकॉज इट इज अबव 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से ऊपर जितने भी होंगे सब नॉर्थ वाले लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री से जितने भी होंगे वो सब के सब साउथ वाले लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। लेकिन अब हम कहेंगे ये 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन हो जाएगी नॉर्थ की, ये 60 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन हो जाएगी नॉर्थ में, इसी तरीके से 60 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन हो जाएगी ये सदर्न हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब अगर आपसे कोई कहे कि यहां पर हमने मान लीजिए कि इस तरीके से मैप बनाया है हमने, और यहां पर पॉइंट ए बनाया और यहां पर पॉइंट बी बनाया, और हमने कहा कि 40 डिग्री साउथ किसके करीब होगा? तो आपको पता है ये 0 डिग्री है, इसके नीचे वाला साउथ, तो 40 डिग्री साउथ इस वाले पॉइंट से करीब होगा।
और अगर आपसे पूछा जाए कि 75 डिग्री नॉर्थ किससे करीब होगा, तो 75 डिग्री नॉर्थ इस पॉइंट ए से करीब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 35 डिग्री नॉर्थ बताएं, तो 35 डिग्री नॉर्थ भी यहां पर बनेगा और वो ए पॉइंट से हमारा करीब होगा। तो आप देख रहे हैं कि लैटिट्यूड से आप बता पा रहे हैं प्लेसेस के बारे में, लेकिन अब ये 35 डिग्री आप बना रहे हैं, तो ये पूरे जितने भी प्लेसेस इस पे होंगे वो सब 35 डिग्री ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे तो ये देखिए, ये है हमारा टारगेट। तो ये 0 डिग्री यानी यहां सेंटर था, यहां से हमने एंगल बनाया और उस एंगल से लाइन बनाई, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन हो गई। ये यहां से सेंटर से ये 30 डिग्री का एंगल बना होगा, तो यहां पर हमने 30 डिग्री से एक लाइन बनाई, तो वो क्या होगा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरीके से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसी तरीके से ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये पूरी लाइन अर्थ के चारों तरफ सेम एंगल पर घूमेगी। तो इसलिए सिर्फ हम इसके अंदर 0 से 90 तक ही जाएंगे, क्योंकि 90 से आगे गए यहां पर 91 का बनाएंगे तो वो हमारा 89 से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। 92 बनाएंगे 88 से कर जाएगा। इसी तरीके से अगर यहां 100 की बात करें तो यहां 80 से हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 80 डिग्री से ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए सिर्फ हम 0 से 90 डिग्री तक के ही लैटिट्यूड्स बना सकते हैं। तो लैटिट्यूड की अगर हम डेफिनेशन लिखने पर आए तो हम प्रॉपर डेफिनेशन इस तरीके से इसकी लिख सकते हैं। तो लैटिट्यूड को हम लिख सकते हैं, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ a point on earth surface measured from the center of the earth in north or south डायरेक्शन। तो कह रहे हैं ये एक किसी भी पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस है जो कि मेजर किया गया है सेंटर ऑफ दी अर्थ से इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जैसे ये है हमारा सेंटर ऑफ दी अर्थ, हमने क्या कहा एंगुलर डिस्टेंस, तो जैसे ये हमारा बेस लाइन है तो हम ये एंगुलर डिस्टेंस, अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये 30 डिग्री हमारा एंगुलर डिस्टेंस हो गया, और ये सरफेस का पॉइंट हो गया। ये सरफेस है हमारा अर्थ का सरफेस, और इससे जो लाइन बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब फर्दर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और हम बात करते हैं। ये तो सिर्फ हमें पता चला कि लैटिट्यूड क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें, जैसे अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स तो हमको पता है कि 0 से लेके हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर 90 तक हम जा पा रहे हैं। यानी 90 तो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, प्लस 90 एंगल्स साउथ डायरेक्शन में, और एक हमारा 0 डिग्री। तो टोटल अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो ये हमारा 181 लैटिट्यूड्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लाइंस की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहां पर कि अब यहां से हर एक पे आप क्या बनाते चलेंगे, लाइंस बनाते चलेंगे। हर एक डिग्री पे आप लाइंस बनाते चलेंगे। प्रैक्टिकली अगर हम इसकी बात करें इनफाइनाइट, लेकिन अगर हम इफ देयर इज 1 डिग्री डिफरेंस बिटवीन लाइंस, 1 डिग्री डिफरेंस बिटवीन लाइंस, 1 डिग्री डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो ऊपर आप 90 तक जा सकते हैं, नीचे आप 90 तक जा सकते हैं। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे लाइन बनाना, तो क्या हो जाएगा, कितनी लाइंस बना पाएंगे, 0 से लेकर ऊपर तक गए आप तो
89 तक तो लाइन बना पाएंगे, 90 वाली लाइन नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? ये अर्थ सरफेस है, 90 यहां होगा, मान लीजिए ये ऐसे अर्थ सरफेस, ये 90 डिग्री, 90 यहां पर क्या है, आप लाइन नहीं बना पाएंगे, बिकॉज यहां पर अर्थ ही हमारा क्या हो गया, खत्म हो चुका है। बिल्कुल एक पॉइंट बचेगा, तो आप 89 तक की तो लाइन बना सकते हैं और नीचे भी 89 तक बना सकते हैं लाइन, 1 से लेकर 89 तक। तो 89 ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 178, और एक 0 डिग्री की लाइन, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 179 लैटिट्यूडिनल लाइंस हो जाएंगे, लैटिट्यूडिनल लाइंस हो जाएंगे, लैटिट्यूडिनल लाइंस 179। हमारे पास लैटिट्यूड 181 है, बट लैटिट्यूडिनल लाइंस 179 है। क्यों? कि 90 डिग्री पे हम वहां पर लाइन नहीं बना पाएंगे, बल्कि एक वो सिंगल पॉइंट मिलेगा। तो आप पिक्चर से अगर इसको विजुलाइज करना चाहें तो इस तरीके से, ये देखिए 90 डिग्री, तो आप 89 की तो लाइन बना पाएंगे यहां पर, और नीचे भी आप 89 की लाइन बना पाएंगे, लेकिन 90 पे एक सिर्फ पॉइंट बचेगा, इसलिए यहां पर लाइन नहीं बन पाएगी, तो ये लैटिट्यूडिनल लाइंस नहीं बन पाएगी। या फिर आप इस वाले में देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ पर, और इसी तरीके से साउथ में भी 90 डिग्री होगा, दोनों पे सिर्फ पॉइंट रह जाएगा, वहां पर आप लाइन नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडिनल लाइंस कितनी हो जाएगी, 179। अब आगे अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं यहां पर, सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल दिख रही हैं। तो ऑल लैटिट्यूडिनल लाइंस, ऑल लैटिट्यूडिनल लाइंस आर पैरेलल, सारी की सारी लैटिट्यूडिनल लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब पैरेलल होंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स। फॉर एग्जांपल यहां पर ये 1 डिग्री का लैटिट्यूड है, यहां पर हमारा 2 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर। यानी कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूडिनल लाइंस ले लें, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर, और ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं? तो ये हमारा 111 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडिनल लाइंस। अब अगर आप यहां पर इसको देखें तो ये जितने भी लैटिट्यूडिनल लाइंस हैं, ये पूरे सर्किल के चारों तरफ हमारे क्या होंगे, घूमेंगे, तो हम कहेंगे ऑल लैटिट्यूडिनल लाइंस आर, ऑल लैटिट्यूडिनल लाइंस आर सर्कुलर, सर्कुलर। तो जितने भी लैटिट्यूडिनल लाइंस हैं वो कैसे हैं, सर्कुलर इन शेप है। आप यहां पर देखिए ये सर्किल बना, ये भी पूरा सर्किल बनेगा, ये भी पूरा कंप्लीट सर्किल बनेगा। जितने भी लैटिट्यूडिनल लाइंस होंगी वो सब के सब सर्कुलर होंगी। और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहां पर 0 डिग्री वाली लाइन से, 0 डिग्री वाली लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सर्किल का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। वैसे ही साउथ में जैसे चलेंगे हम 0 डिग्री से, तब भी साइज छोटा होता जाएगा। तो हम जब भी क्या होगा कि इक्वेटर से, ये 0 डिग्री वाली जो हमारी लैटिट्यूडिनल लाइन है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जैसे ये अर्थ है, ये 0 डिग्री की लाइन है, इसको हम इक्वेटर बोलेंगे, इक्वेटर, इक्वेटर। और इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर आप लिख सकते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो इक्वेटर के ऊपर है, और ये साउथ हेमिस्फीयर होगा, साउथ हेमिस्फीयर। तो आप इक्वेटर से चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएं, ऊपर की तरफ मूव करें, और चाहे नीचे की तरफ मूव करें, तो हमारे जो लैटिट्यूडिनल सर्कल्स होंगे ये क्या होते चले जाएंगे, हमारे छोटे होते चले जाएंगे। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, लैटिट्यूडिनल सर्किल डिक्रीजेस
टुवर्ड्स पोल फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से अगर पोल की तरफ हम मूवमेंट करेंगे तो जितने भी हमारे लैटिट्यूडनल सर्कल्स हैं वो सब के सब साइज में छोटे होते चले जाएंगे। लेकिन सबसे छोटे होते चले जाएंगे तो कोई ना कोई इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा सर्किल रहेगा, यानी कोई एक लैटिट्यूडनल लाइन होगी जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा जिस लैटिट्यूडनल सर्किल जो सबसे बड़ा साइज में होगा उसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल मींस वो लैटिट्यूडनल लाइन जो सबसे बड़ा सर्किल बना रही है अर्थ सरफेस पर, और वो क्या होती है, इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर से बड़ा लैटिट्यूडनल सर्किल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है किससे रिलेटेड, हमारे लैटिट्यूड से रिलेटेड। तो हो आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूडनल लाइंस कैसे बनती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या आपस में पैरेलल होती हैं, और अगर हम ऊपर पोल की तरफ जाएं या नीचे पोल की तरफ जाएं इक्वेटर से तो दोनों का साइज क्या होगा, दोनों तरफ हमारा साइज लैटिट्यूडनल सर्किल का छोटा होता चला जाएगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा 111 किलोमीटर होता है, यानी दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर का। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जितने भी हमारे क्या है लैटिट्यूड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स भी हमने देखे वो 181 है, बिकॉज 90 ऊपर 90 नीचे और एक 0 डिग्री का। लेकिन जब वही लैटिट्यूडनल लाइंस हमने बनाई थी तो सबसे एक एक लाइन बन रही थी, बट हमारा 90 डिग्री पे कोई भी लाइन नहीं बन पाई, बिकॉज वहां पर अर्थ सरफेस ही हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई, वहां पर एक पॉइंट बचा। तो इसलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, 179। 90 ऊपर नॉर्थ वाला हटा देंगे हम 181 में से, और नीचे वाला भी हटा देंगे, तो 2 माइनस करेंगे 181 में से, तो हमारा 179 लैटिट्यूडनल लाइंस होंगे। तो यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड नहीं होगी, और अगर है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, देन हम इसके आगे डिस्कस करते हैं, दैट विल बी लॉन्गिट्यूड। ओके, सो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, तो लेट्स डिस्कस लॉन्गिट्यूड्स। तो बिफोर मूविंग ऑन टू दी लॉन्गिट्यूड्स कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां पर। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं 65 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 35 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट, इसमें से कौन सा हमारे पास लैटिट्यूड नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लैटिट्यूड्स के साथ नॉर्थ एंड साउथ यूज होता है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके साथ ईस्ट हमने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा लैटिट्यूड नहीं होगा। फिर और अगर हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं 95 डिग्री नॉर्थ, फिर 60 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा हमारा लैटिट्यूड नहीं है, तो हमें पता है लैटिट्यूड के साथ पहला पॉइंट क्या देखना है कि नॉर्थ और साउथ मेंशन होना चाहिए। इसमें भी नॉर्थ है, इसमें भी नॉर्थ है, इसमें साउथ है, इसमें साउथ है, तो चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बिकॉज नॉर्थ और साउथ मेंशन है। बट नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि लैटिट्यूड्स कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं। हमने कहा था 0 से 90 तक नॉर्थ में और 0 से 90 तक साउथ में। तो अब आप देख लें इन सारी वैल्यूज में 90 के बाहर कौन जा रहा है, तो ये पहला वाला ही हमारा 90 के बाहर जा रहा है, तो ये लैटिट्यूड पॉसिबल नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है हमको। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अगर अर्थ के सरफेस पे हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो उसके लिए 2 लाइंस चाहिए,
एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, अभी लैटिट्यूड्स और क्या होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया, कैसे बनते हैं इसको भी डिस्कस कर लिया, कितने होते हैं इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। बट क्या इसी से हम लोकेशन देख सकते हैं? नहीं, लोकेशन क्यों नहीं देख सकते? इस चीज से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 40 डिग्री, एक शख्स 40 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़ा है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कोई पर्सन खड़ा है, तो आप बताइए उसकी लोकेशन कहां होगी? तो ये 40 डिग्री लैटिट्यूड है, आप कहेंगे ये 40 डिग्री लैटिट्यूड है, वो पर्सन यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो पर्सन यहां भी तो हो सकता है, ये 40 डिग्री की लाइन है, लेकिन आप उसकी पोजीशन को क्या नहीं कर पा रहे हैं, यहां से फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इस 40 डिग्री लैटिट्यूड पे बहुत सारे प्लेसेस मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर एशिया भी मौजूद है, फिर यहाँ पर यूरोप भी मौजूद है, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका भी मौजूद है, तो वो पर्सन कहाँ होगा एग्जैक्टली हम सिर्फ लैटिट्यूड को पता करके नहीं बता सकते। तो जब तक हमें दूसरी लाइन ना मिल जाए, दैट इज वर्टिकल लाइन, तब तक हम उसकी लोकेशन को फिक्स नहीं कर सकते। अब अगर आपसे कोई कह दे कि भाई कोई पर्सन जो है वो 40 डिग्री लैटिट्यूड और 100 डिग्री हमारे लॉन्गिट्यूड पे खड़ा है, तो 40 डिग्री लैटिट्यूड ये है और 100 डिग्री लैटिट्यूड ये है, मींस इस पॉइंट पे वो खड़ा है, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये एशिया के अंदर वो आदमी खड़ा है, बिकॉज आपको दोनों लाइंस मिल गई, एक लैटिट्यूड दूसरा लॉन्गिट्यूड। तो अगर हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस से ही लोकेशन ढूंढने की कोशिश करी तो कभी भी हम पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें दूसरी लाइन भी चाहिए, दैट विल बी वर्टिकल लाइन, और उसी वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलेंगे, जो इस तरीके से बने। जब तक हमारे पास दोनों लाइंस मौजूद नहीं होंगी, यानी लैटिट्यूड्स की वैल्यू नहीं होगी और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू नहीं होगी, तब तक हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन नहीं बता सकते हैं। अगर कोई भी इनमें से एक गायब हुआ तो हम पर्टिकुलर लोकेशन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हमें सिर्फ ये वर्टिकल लाइन भी पता होगी तो इस पे भी सिर्फ कुछ ही प्लेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री की लाइन देखिए, तो आप इस पे देखेंगे ये अफ्रीका का पोर्शन भी मौजूद है, यूरोप का पोर्शन भी मौजूद है, तो आप पर्सन को कहां फिक्स करेंगे? आप अफ्रीका के अंदर देखें तो डिफरेंट कंट्रीज से होते हुए ये लाइन जा रही है, तो आप कभी भी पर्सन को पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड या सिर्फ लैटिट्यूड के पता होने की वजह से। आपको अगर पर्टिकुलर लोकेशन, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, जिसको हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बोला लैटिट्यूडनल लाइंस, जो कि अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, लैटिट्यूडनल लाइंस। और हमने वर्टिकल वाली लाइन को बोला, वर्टिकल वाली लाइन को हमने बोला लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, और इसी से बनेगा हमारा लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। सेम कहानी चलेगी इसमें भी कि ये एक एंगल होता है और एंगल कहां है, सेंटर ऑफ द अर्थ से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। बट आप कहेंगे कि सर ये तो सेम चीज लग रही है, जो लैटिट्यूड में हमने पढ़ा कि एंगल था, सेंटर ऑफ अर्थ था, लेकिन वहां तीसरी भी चीज थी, हमने कहा था इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और यहां पर क्या आ जाएगा कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, यानी एक ऐसा एंगल सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर किया गया हो जो और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मेजर किया है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। अब कैसे, तो आपने देखा कि हमारे पास ये अर्थ था, तो हमने क्या किया, यहां पर ये इक्वेटर था 0 डिग्री, और इसके ऊपर हमने नॉर्थ और इसके ऊपर हमने साउथ का था, तो यहां से इस तरीके से हम इसको लैटिट्यूड्स बनाते हुए चल रहे थे, नॉर्थ एंड साउथ में। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ऐसे भी तो है कि हम ऐसे लाइंस बना दें ईस्ट वेस्ट और ईस्ट में, तो ये ईस्ट वेस्ट वाला जो
लाइन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। यानी वो एंगल जो सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर किया हो बट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और वेस्ट, ऐसे एंगल को हम क्या बोल रहे होंगे, लॉन्गिट्यूड बोल रहे होंगे। अब ये कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये सेंटर ऑफ द अर्थ। अब सेंटर ऑफ द अर्थ से फिर वही कोई एक पर्टिकुलर आप बेस लाइन क्रिएट करेंगे। अब ये बेस लाइन हमने यहां पर क्रिएट कर ली इस तरीके से। अब यहां से जो लाइन बनाएंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, और इसको हम कह रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब कोई कहेगा नहीं सर मैं 0 डिग्री जो है वो यहां से करना चाहता हूं, ये मैं 0 डिग्री तो बिल्कुल आप बना सकते हैं 0 डिग्री, कोई इश्यू नहीं है। तो 0 डिग्री जहां से भी बनाएंगे उसके इधर वाला ये हमारा ईस्ट और इधर वाला वेस्ट होगा। आपने इससे बनाया तो इसके इधर वाला ईस्ट होगा और इसके इधर वाला वेस्ट होगा। आप यहां से बना लेंगे तो इसके इधर वाला सारा पोर्शन ईस्ट होगा और इसके इधर वाला सब वेस्ट होगा। तो आप कहीं से भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं कि रेफरेंस लाइन आपने जो बनाई है वो किसी भी जगह पर बना सकते हैं। बट अगर ऐसा होता कि रेफरेंस लाइन हम कहीं से भी बना सकते तो सब लोग अपनी मर्जी से बनाते रहते और फिर सब लोगों के हिसाब से अलग ईस्ट और वेस्ट होता, तो फिर हम चीजों को फिक्स ही नहीं कर पाते। पता चला मेरे वजह से कोई प्लेन ईस्ट में जा रहा है लेकिन किसी और शख्स के हिसाब से वो तो वेस्ट में जा रहा है, तो ये लोकेशन कभी भी फिक्स नहीं हो पाती। इसीलिए क्या किया गया, इसको फिक्स किया गया यहां पर 0 डिग्री। इस जगह पे लंदन में हमारे एक जगह पर एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां पर ग्रीनविच लेबोरेटरी है लंदन में। उस जगह से जो लाइन गुजरती है उसको हमने क्या माना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये हमारा रेफरेंस रहेगा और इसी को हमने बोला है प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने क्या मान लिया, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन हमने क्या माना है कि रेफरेंस जहां से हम सारे लॉन्गिट्यूड को मेजर करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो ये हमारा अर्थ सरफेस है इस तरीके से, ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया। हमने यहाँ से ये एक एंगल बनाया और इससे जो लाइन बनेगी उसको हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोल दिया। अब इसके इधर हम लाइन बनाते हुए इस तरीके से, अब यहाँ पर 90 आ गया, हम इसके ऊपर भी बना सकते हैं। अब बनाते हुए हम बिल्कुल यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब कहेंगे कि ये सर 90 से एक्सीड कर गया, हमने तो वहाँ 90 तक देखा था लैटिट्यूड्स में, ये कैसे एक्सीड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे हर एक से, जैसे यहाँ इस तरीके से आप लाइन बनाते चलेंगे तो लाइन कभी भी क्या होगी, ओवरलैप नहीं करेगी, और ओवरलैप नहीं करेगी तो फिर वो अलग अलग लाइंस होगी। वहां पर क्या हो रहा था कि अगर हम 89 डिग्री पे लाइन बना रहे थे वही लाइन 91 डिग्री पे पास हो जा रही थी दूसरी साइड, इसलिए वो दोनों को हमें क्या मानना पड़ रहा था कि हम दूसरी साइड नहीं बना रहे थे, 90 तक ही मैक्सिमम लिमिट। तो 90 यही हो जाएगा 90 डिग्री, और इससे ऊपर भी हम इधर की तरफ जाएंगे और इससे कम इधर रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी होंगे ये सब के साथ ईस्ट के साथ आएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ एंगल बनाएंगे और ये एंगल हम बनाते बनाते और ये सारे का सारा वेस्ट होगा, वेस्ट। तो इस तरीके से ये लाइंस बनती हुई नजर आएंगी आपको, और इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये 0 डिग्री है जिसको हमने क्या बोला है, प्राइम मेरिडियन बोला है। अब ये 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर, और फिर इससे जो लाइन बनाई वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो गई। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री हमारी लाइंस
यानी हम 180 तक जा सकते हैं, यानी इधर से हम 0 से 180 डिग्री ईस्ट जा सकते हैं और 0 से 180 डिग्री वेस्ट। तो ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन का एक्सटेंट। वैसे भी आप देखिए ना कि हमारा अर्थ है सर्कुलर है, तो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और अगर हमें इसके ऊपर एंगल्स बनाने हैं, पूरे सर्कल को कवर करना है, तो कितने? 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो 180 इधर हो गया और 180 इधर, दोनों को सम अप करेंगे तो देखिए 360 डिग्री निकल के आएगा। लेकिन चूंकि अर्थ क्या है हमारा? राउंड है, तो जो हमारा स्फेरिकल है ना थोड़ा सा, जिसको हमने ऑब्लेट स्फेरॉइड बोला था, तो ये जो हमारी स्फेरिसिटी है, इसकी वजह से जो 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। सॉरी, 0 डिग्री 180 डिग्री नहीं, बल्कि जो 180 डिग्री वेस्ट होगा और 180 डिग्री ईस्ट होगा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे और एक सिंगल लाइन बनेगी। इसको हम समझ सकते हैं। इस पेपर पे देखिए, यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है, ये 0 डिग्री का लाइन है, जिसको हमने क्या बोला है? यहां पर प्राइम मेरिडियन बोला है। ये 180 डिग्री हमारा ईस्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ये 180 डिग्री ईस्ट है। ये हम लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट है। तो जब ये इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आएगा, तो आप ये देखिए, ये जो पॉइंट 1 और 2 था, पॉइंट 1 और 2 था, ये दोनों ओवरलैप कर गए, यानी 180 डिग्री की लाइन। बिकॉज अर्थ क्या है हमारा? अर्थ स्फेरिसिटी में है ना। जब इसको आप ओपन करेंगे इस तरीके से, तो जब ये ओपन होगा तो देखें 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर हो जाएगा। तो इसलिए ये एक सिंगल लाइन बनेगी हमारी 180 डिग्री को, जिसको हम एक ही लाइन मानेंगे। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करना चाहें कि टोटल हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 179 डिग्री ईस्ट तक जा सकते हैं 1 से लेके, फिर 1 से लेके 179 डिग्री वेस्ट हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, इधर की तरफ, और एक हमारा 0 डिग्री हो जाएगा प्राइम मेरिडियन, और फिर 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 179 यहाँ और फिर यहाँ 179 और फिर एक ये हो जाएगा 0 डिग्री, एक 180 डिग्री। जब इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। यानी हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे? 360 डिग्री और 360 डिग्री होंगे। तो हम कहेंगे कि ये हमारे नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल, और हर एक से हम एक लाइन बना पाएंगे। अगर हम एक डिग्री का डिफरेंस लें तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की कितनी बनेगी? 360 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनेगी। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट बन सकती है, क्योंकि आप दो, जैसे ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच में आप इनफाइनाइट बना सकते हैं, बिकॉज आप पॉइंट्स में जा सकते हैं। इसलिए आप गूगल पे कभी आप लोकेशन देखेंगे किसी भी पॉइंट की, तो आप देखेंगे वहां पर पॉइंट में भी आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मेंशन है। तो दो लाइंस के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप कितने लॉन्गिट्यूड्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं। बट अगर एक डिग्री का डिफरेंस लें तो टोटल हम 360 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हम मैप पर बना सकते हैं। कोई भी मैप आप उठा के देखें तो उसमें आपको इस तरीके से दिखेगा कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है हमारा, क्योंकि 2D प्लेन होता है। तो यहाँ पर हमारा ये अगर 0 डिग्री है तो यहाँ हमारा 180 डिग्री ईस्ट तक हम इधर जा सकते हैं, और इधर जाएंगे तो ये 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे, और ये 180 की लाइन होगी, ये 180 की लाइन होगी। 90 तो यहाँ कहीं बीच में नहीं आ जाएगा, तो 90 से आगे भी जा सकते हैं ना। जैसे हम लैटिट्यूड्स में 90 पे रुक गए थे, यहाँ नहीं रुकेंगे, हम इससे आगे जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास टोटल कितना होगा? 360 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मौजूद होंगी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पर? ओके। अब इससे भी रिलेटेड हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। अब जैसे हमने ये पेपर के जरिए दिखाया कि अर्थ इस तरीके से स्फेरिसिटी में है,
इस तरीके से स्पेरिसिटी में, यानी ये हमें स्पेरिसिटी दिख रही है। तो अब लाइंस आपको कहीं जुड़ती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर हमें लॉन्गिट्यूड्स को बनाना है, क्योंकि अर्थ क्या है हमारा स्फेरॉइड शेप का है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर से और नीचे से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हमारे कनेक्ट होंगे एक पॉइंट पे इस तरीके से, जैसे ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स यहाँ बन रहे हैं इस तरीके से। ये तो बिल्कुल ये हो गया कि रेक्टेंगुलर अगर होता तो ऐसे ही होता, लेकिन अर्थ क्या है हमारा स्फेरिसिटी में है, तो अब इन सारे लॉन्गिट्यूड को हम इधर की तरफ जोड़ेंगे, तो ये एक सिंगल पॉइंट पे जुड़ेगा इस तरीके से, और ऐसे ही नीचे की तरफ सारे लॉन्गिट्यूड्स जुड़ेंगे यहाँ पर, और ये पोल होगा हमारा यहाँ पर। तो नीचे भी पोल पे ऊपर भी पोल पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पैरेलल है क्या लाइंस? नहीं। तो लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती है। लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस आर नॉट पैरेलल, जैसे हमारा पैरेलल होता था इसमें लैटिट्यूड्स में, वैसे हमारे पास लॉन्गिट्यूड पैरेलल लाइंस नहीं मिलेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होंगे कि वो एक पॉइंट पे जाके जुड़ रहे होंगे, उनकी डिस्टेंसेस कम होती चली जाएंगी पोल की तरफ। अब आप देखें कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है इस जगह पे, और धीरे धीरे ये डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी पैरेलल नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट फ्रॉम पोल टू दी फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ हमारे पास कहीं भी डिस्टेंस क्या है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये लाइंस आपस में क्या नहीं है, पैरेलल नहीं। अब पैरेलल नहीं तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर ये सब क्या है कि वहां पर क्या बना रहा था, सर्कुलर बना रहा था, क्योंकि पूरे अर्थ पर वो क्या कर रहा था, राउंड ले रहा था, तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन रहा था। बट यहां पर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वो सर्कल नहीं बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस सर्कल नहीं होंगे, आर ये सेमी सर्कुलर होंगे, सेमी सर्कुलर होंगे। इसको हम एक और डायग्राम से यहां देख सकते हैं, या इस तरीके से देखें, ये देखेंगे तो ये सब आपको सेमी सर्कुलर। आप कहेंगे कि सर ये वाली लाइन देखिए, ये तो उधर भी चली जा रही है, ये तो पूरा सर्किल, हाँ वन पूरा सर्किल रहा होगा, बट ये 30 डिग्री की लाइन है यहाँ पर, ये 30 डिग्री की अगर लाइन है तो सामने देखेंगे तो 150 डिग्री की लाइन आ चुकी होगी, 150। अब वैल्यूज चेंज होगी, इधर 30 डिग्री है, 150 डिग्री, वहां क्या था, वैल्यूज चेंज ही नहीं हो रही थी हमारी, प्रैक्टिकली क्या है वो एक सिंगल लाइन बन जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरी की पूरी वैल्यू ही क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। यहाँ पर हमारा ईस्ट है तो उधर वेस्ट हो गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि हम इसको सेमी सर्कुलर मान रहे हैं कि ये सेमी सर्कुलर होता है। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 360 डिग्री, और लैटिट्यूड्स हमारे पास 360, और लैटिट्यूडिनल लाइंस ये भी कितने हो गए, 360 डिग्री हो गए। अब आप इसमें एक और पॉइंट देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेटर है, तो यहां पर देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, और धीरे धीरे पोल की तरफ बढ़ते चले गए, तो पोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है कि डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन longitudinal lines decreases towards पोल की तरफ क्या है कि ये डिक्रीज करती है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये डिस्टेंस डिक्रीज करती है। और मैक्सिमम कहां पर होता है, तो मैक्सिमम इक्वेटर पर होता है, और मैक्सिमम कहां होगा डिस्टेंस, वो इक्वेटर पर होगा, और कितना होगा, ये होगा 111.3 किलोमीटर। यानी दो कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इक्वेटर के ऊपर वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा 111.3 किलोमीटर्स होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये 10 डिग्री का गया, अब यहाँ 170 वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ 20 डिग्री का गया, यहाँ 160 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कभी भी कंप्लीट सर्किल हमारा नहीं बन पाएगा।
इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन वो कि बहुत आसान था, थोड़ा सा बहुत हम जो है टेक्निकलिटीज में गए इसको समझने के लिए, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, इधर वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कोई पर्सन 40 डिग्री नॉर्थ और 130 डिग्री ईस्ट पर है, तो वो कहां पर होगा? तो आप क्या बता सकते हैं इसको? तो बहुत आसान है, ये हमारा लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। 40 डिग्री नॉर्थ को आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री नॉर्थ का है, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो 40 डिग्री नॉर्थ। फिर कह रहे हैं 130 डिग्री ईस्ट, ये 140 की लाइन है, 130 यहाँ कहीं होगी। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे हमारे कहीं पर क्या होगा कि वो पर्सन यहाँ कहीं होगा हमारे। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कोई पर्सन हमारा 140 डिग्री वेस्ट पर मौजूद है और उसने बोला कि 60 डिग्री नॉर्थ पर मौजूद है इस पॉइंट, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लैटिट्यूड है, तो 60 डिग्री लैटिट्यूड ये मौजूद आपके पास यहाँ पर, और 140 डिग्री वेस्ट, तो आपको पता है 0 डिग्री इधर वाले सारे वेस्ट होंगे, 140 डिग्री वेस्ट, तो इस जगह पर मौजूद होगा हमारा कोई पर्सन यहाँ पर मौजूद होगा। तो इस तरीके से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी पर्सन की लोकेशन निकाल सकते हैं, और या किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का पता होना ज़रूरी है। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड्स and longitudes, you cannot properly understand the geography of a particular region. And not only geography, there are many phenomena which are related to latitudes and longitudes. If you are knowing the latitudes and longitudes of the places, you can find out which type of wind is blowing there, which type of ocean current is there, which type of climate is present at that particular place. If you want to know climate, wind system, or ocean currents, you must have the understanding of latitudes and longitudes. Without this, you cannot properly understand the geography, and you cannot excel in geography. So this is very basic concept of latitudes and longitudes, but very very important too. So you have to understand this well, and if you are having any confusion, you might ask, and you can inquire about that. Okay, so I will discuss again and again. I have no issues in discussing the concept and terms. Okay, for example, now moving to another question. For example, if I am writing 60 degree north, 120 degree east, 60 degree west, 30 degree east, and tell me which one is not the longitude. So for longitude, you must have to, or you must have an idea that it contains east and west. नॉर्थ इज इन दी लैटिट्यूड्स, यानी जिसके साथ जिस भी एंगल के साथ नॉर्थ और साउथ लगा है वो हमेशा लैटिट्यूड होगा, और ईस्ट और वेस्ट लगा है तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड नहीं है बल्कि लैटिट्यूड है। कोई आपको कहे कि 189 ईस्ट, 179 वेस्ट एंड 195 नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्ट, इसमें से
कौन सा आपका लैटिट्यूड है। तो आप कहेंगे कि लैटिट्यूड इसमें से ना तो ये हो सकता है बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द लिमिट, और ये भी लैटिट्यूड नहीं है बिकॉज इट इज लॉन्गिट्यूड, ये भी लॉन्गिट्यूड, ये भी लॉन्गिट्यूड। और अगर पूछा जाए इसमें से लॉन्गिट्यूड कौन नहीं है तो लॉन्गिट्यूड ये नहीं है बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ऐसा कोई ना लैटिट्यूड होता है ना लॉन्गिट्यूड होता है 195 डिग्री। सो हमने ये समझ लिया। तो अब जैसे हम इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में यहां पर आप देखेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड, यहां पर लैटिट्यूडनल वैल्यू होगी, यहां पर भी लैटिट्यूडनल वैल्यू होगी, इधर लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू होगी, इधर भी लॉन्गिट्यूडनल। तो एक एक्सटेंट होगा इंडिया, यानी कोई इसके लैटिट्यूड वेरी कर रहा होगा कि इसके बीच में इंडिया लाई करता है, और लॉन्गिट्यूड भी वेरी कर रहा होगा कि इसके बीच में इंडिया लाई कर रहा है। इसको हम इसके जरिए देख सकते हैं, यहाँ पर मैप के जरिए। तो इस मैप के जरिए देखिए कि यहाँ पर लिखा है 68 डिग्री ईस्ट, मीन्स दिस इज लॉन्गिट्यूड, ये 97 डिग्री ईस्ट, इट इज लॉन्गिट्यूड। अब आप कहेंगे सर इधर तो वेस्ट लिखना चाहिए, ये इंडिया का वेस्ट है, ईस्ट कैसे लिख दिया? अरे भाई ईस्ट इसलिए लिख दिया, आप यहाँ पर देखें कि ये है हमारा, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंडिया हमारा इस वाले हेमिस्फीयर में। तो जितने भी इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स होंगे, सारे लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन वाले ही आएंगे बिकॉज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इधर सबका सब क्या होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन होगा। और ये इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नीचे की तरफ यहाँ पर लैटिट्यूड मौजूद होगा इंडिया का 6 डिग्री समथिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन लगेगी, और यहाँ पर भी हमारा क्या है 37 डिग्री के आसपास है, यहाँ पर 8 डिग्री है, सॉरी 8 डिग्री के आसपास, और यहाँ पर 37 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ भी नॉर्थ आएगा हमारा। तो इंडिया का अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो उसमें नॉर्थ और ईस्ट ही आएगा बिकॉज इंडिया इज लाइंग इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ दी ग्लोब, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, इसलिए इंडिया के साथ ऐसा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंबाइंड नेटवर्क ऑफ हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे 180 डिग्री बना हुआ है, ये 0 डिग्री की लाइन है जिसको ग्रीनविच मेरिडियन बोल रहे हैं, इधर 180 डिग्री है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 170 डिग्री एंगल, 170 तक यहाँ मेंशन है, ये 180, तो यहाँ 179 तक हम चले जाएंगे, और इस तरीके से हम जो है यहाँ पर ही चले जाएंगे। अभी पिछली एग्जाम्पल में मैंने एक लॉन्गिट्यूड में 189 डिग्री लिख दिया था शायद, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये भी हमारा लॉन्गिट्यूड नहीं होगा बिकॉज 180 तक ही तो लॉन्गिट्यूड में हम जा रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें, तो जो भी विद इन लिमिट्स होगा उसी को हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, यानी 0 से 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट हो तो ये लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू होंगी, और 0 से 90 नॉर्थ साउथ होगा तो ये लैटिट्यूडनल वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूड्स बने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स आपको दिख रहे होंगे 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 90 तक गए हैं, और यहाँ पर ये हमारे सर्कल्स बन रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट and geographical phenomena. You must have the idea of latitudes and longitudes. So go and read from this chapter from your book too, and if you have prepared the short notes from this lecture, you can refer to, and if you are having any query, any confusion, you can ask anytime, and you can comment on the comment section of the YouTube channel. I will try to respond each and every query. So that's all from my side in today's class and today's topic, and in next class we are going to discuss more about this latitude and longitude, because latitude and longitude, so it is related with season and it is related with time. So in next coming 2 or 3 classes we will going to cover these topics too. So in next class we will discuss about the relation between season and latitude, and next class we will discuss relation between longitude and time. After that the geography
basics will be completed, and after that we will bring a new course, that is geomorphology, and we will try to understand geomorphology in detail. So I'm hoping that you have got better understanding of latitudes and longitudes in this class. That's all from my side in today's class. Thank you for joining with me. Thank you very much.